Good morning, student. Myself Siraj Sukani, and I'm going to teach you financial management subject. Now, today in this session, we will continue our sum. Example number 8. A textile company belongs to the risk class for which the appropriate PE ratio is 10. Okay. So, in this sum, PE ratio is given. PE ratio is what? 10. Clear? Now we all know that when the P ratio is given, so we can easily find out the KE. So K is what? 1 upon PE ratio, है ना? ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. So 1 upon 10. So 1 upon 10 यानी 0.10. That is what KE क्या बन जाएगा? 10%. Clear all of you? Then it currently has 50,000 outstanding shares selling at rupees 100 each. So 50,000 क्या है? N number of shares that is what 50,000. Then selling at rupees 100 यानी P0. क्लियर? इन शॉर्ट आपका आंसर भी क्या आएगा? 50 lakhs आपका आंसर आना चाहिए वैल्यू ऑफ द फर्म में. नेक्स्ट, a firm is contemplating the declaration of rupees 8 as a dividend at the end of the current fiscal year which has just started. So D1 is given 8. Clear? Then given the assumptions of answer the following question. First, what will be the price of the shares B at the end of the year if dividend is not declared and if it is declared? Okay, चलो A पूछा है, that is price of the shares at end of year, at the end of the year when dividend is not declared and if it is declared. Clear all of you? चलो, so first dividend declared, and next यहाँ पे लिख लो dividend not declared. डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड. चलो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर्मूला आपको अभी तो पता ही है. P0 इज इक्वल टू व्हाट? D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE. क्लियर? सो P0 कितना है? 100. D1 8 प्लस P1 फाइंड आउट करना है 1 प्लस KE जो हम लोग ने फाइंड आउट किया P रेशियो से, दैट इज 0.10. सो 100 का 100 8 प्लस P1 अपॉन 1.1. So 100 का 100 1.1 is equal to 8 plus P1. So 110 is equal to 8 plus P1. Clear? So 110 minus 8 is equal to P1. Therefore P1 is what? Rupees 102 आएगा. Clear? Now dividend not declared. So what is the formula? P0 is what? P1 upon 1 plus K. सो 100 का 100 इज इक्वल टू P1 फाइंड आउट करना है 1 प्लस 0.10. सो 100 का 100 P1 अपॉन 1.10. क्लियर? सो 100 इंटू 1.10 इज इक्वल टू P1. देयरफॉर P1 क्या बन जाएगा? रुपीज 110. सो आंसर इज ओवर. प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर. B, assuming that the firm pay the dividend has net income of 5 lakh and make new investment of 10 lakh. How many new shares must be issued? यानी डेल्टा एन फाइंड आउट करना है बी में. सो बी में क्या करना है? हाउ मेनी न्यू शेयर्स. क्लियर? दो केसेस में आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया? नेट इनकम 5 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख. सो इनकम यानी अर्निंग. सो अर्निंग कितना दिया? अर्निंग 5 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख. क्लियर? सो दोनों केसेस में डिविडेंड डिक्लेयर्ड और यहाँ पे क्या डालेंगे? डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड. नाउ न्यू शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अमाउंट रिक्वायर्ड ना. So delta NP1 when dividend declared, what is the formula? I into bracket E minus ND1 है ना. So investment कितना? 10 lakh minus earning
5 lakh minus number of shares 50,000 and dividend 8. Clear? So 10 lakh का 10 lakh minus into bracket 5 lakh का 5 lakh minus 8 into 50,000, that is 4 lakh. Clear? So 10 lakh minus 5 minus 4, 1 lakh. So amount required 9 lakh rupees आया. तो number of shares, number of additional shares, so delta n p1 upon p1 है ना. So 9 lakh का 9 lakh divided by p1 कितना हम लोग ने फाइंड आउट किया 102 when the dividend declared. क्लियर? सो आपका पॉइंट में आंसर आया 8823.53, दैट इज व्हाट 8824 शेयर्स. क्लियर? नाउ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, सो अमाउंट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला सिंपल सा आई माइनस ई. सो इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख माइनस अर्निंग 5 लाख, तो आपका अमाउंट रिक्वायर्ड का आंसर कितना आएगा 5 लाख रुपीज. सो डेल्टा एन क्या होगा डेल्टा एन p1 अपॉन p1. सो 5 लाख डिवाइडेड बाय प्राइस 110 थी. ओके, सो अगेन आपका पॉइंट में आंसर आया 4545.45, दैट इज व्हाट 4545 शेयर्स. क्लियर? नाउ सी में क्या पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. सो दोनों में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज वैल्यू कब डिविडेंड डिक्लेयर्ड में पहले करते हैं फिर बाद में डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला एनपीओ इज व्हाट एन प्लस डेल्टा एन p1 माइनस आई प्लस ई अपॉन 1 प्लस के. ये तो अभी याद रख के देना है. एन कितना दिया है 50,000 शेयर्स प्लस डेल्टा एन जो हम लोग ने फाइंड आउट किया. सो राउंड अप में नहीं आया तो ऊपर वाला लेना है ना. सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 102, प्राइस 102, इन्वेस्टमेंट 10 लाख, अर्निंग 5 lakh divided by 1 plus KE 0.10. So LCM 102. So यहाँ पे 1 होगा. So 102 into 50,000, that is 51 lakhs plus 102 तो 1 into 9 lakhs, so 9 lakh divided by 102. 102 का 102 रहेगा minus 10 lakh plus 5 lakh divided by 1.10. Now 51 lakh plus 9 lakh 60 lakh divided by 102. 102 का 102 minus 10 lakh plus 5 lakh divided by 1.10. Now 102 cancel, so 60 lakh minus 10 lakh plus 5 lakh divided by 1.10. ओके, सो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 55 lakh डिवाइडेड बाय 1.10. सो आपका आंसर सही आया 50 lakhs रुपीस वैल्यू. क्लियर? सो ये कब था डिविडेंड डिक्लेयर्ड. क्लियर? अभी क्या करना है डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड. एक जैसा ही सब आ रहे हैं इसलिए फास्ट हम लोग जा रहे हैं. डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड. सो एनपीओ इज व्हाट फॉर्मूला आपको अभी याद है ना डेल्टा एन प्लस डेल्टा एन नॉट डिक्लेयर्ड में कितना था 5 lakh डिवाइडेड बाय 110, प्राइस 110 माइनस इन्वेस्टमेंट 10 lakh प्लस अर्निंग 5 lakh
divided by 1 plus k 0.10. So LCM 110 होगा. So 110 into 50,000, that is 55 lakhs plus 5 lakh divided by 110. 110 minus 10 lakh plus 5 lakh divided by 1.10. Okay, so 55 plus 5. So answer 60 lakh divided by 110 into 110 minus 10 lakh plus 5 lakh divided by 1.10. So 110 cancel. So 60 lakh minus 10 lakh plus 5 lakh divided by 1.10. So आपका आंसर आएगा 55 lakhs divided by 1.10. That is what? Rupees 50 lakhs. तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म चेंज नहीं हुआ. क्लियर? सो अगेन हम लोग का आंसर राइट हुआ. क्लियर ऑल ऑफ यू? बाय. टेक केयर. नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो.